A warm and pleasant morning to all of you. How are you all? Today we'll start with the control of gene expression. Okay, so what do you mean by control of gene expression? Do you know what happens in our body? Each and every movement, growth, development, whatever the things happens in a human, it always happens because of the gene expressions. Whenever our genes are there, our gene express themselves and that particular characteristic scenes in our body. ओके तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें होती है वो किसकी वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ द जीन एक्सप्रेशन. So we'll start with this. First point, each cell in the human contains all the genetic material for the growth and development of a human. Okay? हर एक सेल हमारे ह्यूमन के अंदर हर सेल जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है एंड ईच सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सम ऑफ दिस जीन विल बी नीडेड टू बी एक्सप्रेस ऑल द टाइम. और इनमें से कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑल द टाइम हर वक्त उनका एक्सप्रेशन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है. These are the genes that are involved in of vital biochemical processes such as respiration. Respiration में हमारे अंदर genes involved होते हैं. Other genes are not expressed all the time. They are switched on and off as needed. हर टाइम किसी ना किसी जीन का होना ज़रूरी नहीं है. लाइक हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट जब हो रहा है तो एक लिमिट के बाद हमारी बॉडी की जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है. तो हर वक्त हमारी बॉडी ग्रो करे या डेवलप करे ऐसा ज़रूरी नहीं है. बट हमारी बॉडी ऑल टाइम सर्कुलेशन परफॉर्म करती है, ऑल टाइम रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है, फिल्ट्रेशन हमारी बॉडी में चलता है, डाइजेशन की प्रोसेस भी कंटिन्यूस चलती है जब जब हम खाना खाते हैं. तो ये ऐसी प्रोसेस है जो कंटिन्यूस हमारी बॉडी में रन करती रहती है. और इन प्रोसेस के अंदर जो एक्सप्रेशन होते हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ सम genes responsible for that. So that type of genes need to be expressed all the time. And some processes are like when we wake up, when we sleep, we run, we write, we read. So these are also controlled by some of our genes. So their expression may not be that much important to be continuously on or continuously active all the time. So they can be switched on or off as they needed. Okay, so today we'll start with the operon. And operon is a group of genes that are transcribed at the same time. operon क्या होता है? कुछ जीन्स का ग्रुप होता है जो सेम टाइप पर ट्रांसक्राइब होते हैं. और ये चीज़ हमें किसने बताई थी? जैकब, मोनार्ड एंड लॉफ ने. ठीक है. दे यूजुअली कंट्रोल एन इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस एंड दे आर ओनली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स. किस में होते हैं ये? जनरली ओनली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स. ओके, तो हमारी प्रोसेस क्या होती है? पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है. ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर हमारा क्या होगा? डीएनए से बन जाएगा एमआरएनए. देन होगा ट्रांसलेशन और प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा एंड फिर हमारे जीन का एक्सप्रेशन होगा. ठीक है. सो टुडे विल स्टार्ट विद द लैक operon. Do you know what do you mean by lac? Why we use word lac over here? Lac denotes to lactose. ये किसको डिनोट करता है? लैक्टोज को. Okay, so the lac operon consists of 3 genes, each involved in processing the sugar lactose. One of them is the gene for the enzyme beta galactosidase. This gene hydrolyzes the lactose into glucose and galactose. 3 टाइप के जीन चाहिए. एक ऐसा जीन जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को करे कोड. और बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक ऐसा जीन है जो क्या करता है? हाइड्रोलाइज करता है किसको? लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में. ओके. Now the next point is that the adapting to the environment. अब हमने बात करी ये किस में होगा? प्रोकैरियोट में. So here we are taking the example of E. coli. E. coli can use either glucose, which is an monosaccharide,
और लैक्टोज विच इज़ अ डाइसैकेराइड। तो ई कोलाई जो है वो दोनों ही चीज़ों को यूज़ कर सकता है, ग्लूकोज और लैक्टोज बोथ। Glucose, you all know that they are the monosaccharides and we can't break glucose into further small saccharides. But lactose is a disaccharide and we can break lactose into galactose and glucose. However, lactose need to be hydrolyzed first. और लैक्टोज को सबसे पहले हाइड्रोलाइज होने की ज़रूरत है क्योंकि वो डाइसैकेराइड है. सो द बैक्टीरियम प्रेफर टू यूज़ ग्लूकोज व्हेन इट कैन. ओके, जब भी ग्लूकोज की ज़रूरत है, जब वो उसको बैक्टीरिया प्रेफर करता है ग्लूकोज का यूज़ करना. 4 सिचुएशंस आर पॉसिबल फॉर दिस. इस प्रोसेस में कितनी सिचुएशंस पॉसिबल है? 4. सबसे फर्स्ट, व्हेन ग्लूकोज इज प्रेजेंट एंड लैक्टोज इज एब्सेंट. ठीक है, द ई कोलाई डज नॉट प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेज. क्या बोला उसने? जब कौन प्रेजेंट होगा? ग्लूकोज प्रेजेंट होगा और अपना लैक्टोज एब्सेंट होगा. जब ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ग्लूकोज फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होगा, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा. ठीक है. सेकेंड सिचुएशन इज when glucose is present and lactose is present, the E. coli does not produce beta galactosidase. जब दोनों ही प्रेजेंट है, कौन? ग्लूकोज एंड लैक्टोज बोथ, तब भी ई कोलाई बीटा गैलेक्टोसाइडेज का प्रोडक्शन नहीं करते हैं बिकॉज दे प्रीफर ग्लूकोज. थर्ड इज व्हेन ग्लूकोज इज एब्सेंट एंड लैक्टोज इज एब्सेंट. अगर दोनों ही एब्सेंट है तो भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज का प्रोडक्शन नहीं होगा. द फोर्थ कंडीशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है, दैट इज व्हेन ग्लूकोज एब्सेंट होगा और लैक्टोज प्रेजेंट होगा. ठीक है. तो 4 में से कौन सी इंपॉर्टेंट कंडीशन है? हमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज का अगर प्रोडक्शन करना है, फर्दर हाइड्रोलाइज करना है, तो क्या देखना है कि जब ग्लूकोज एब्सेंट हो और सिर्फ लैक्टोज प्रेजेंट हो. ठीक है. तो इसको हम बोलेंगे लैक ऑपेरॉन. ये हमारी कौन सी प्रोसेस है? लैक ऑपेरॉन. क्योंकि यहाँ पर कौन प्रेजेंट है? अपना यहाँ पर अपना प्रेजेंट रहेगा लैक्टोज. फाइन. तो अब हम देखेंगे द कंट्रोल ऑफ द लैक ऑपेरॉन. किस में कंट्रोल है? अपना लैक्टोज से. पहली कंडीशन पे आता है व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट. जब हमारा लैक्टोज एब्सेंट है क्या होगा? अ रिप्रेसर प्रोटीन इज कंटिन्यूसली सिंथेसाइज्ड. अब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से अपने प्रोटीन्स होते हैं. कौन कौन से प्रोटीन्स हैं यहाँ पर? रिप्रेसर प्रोटीन. ठीक है. और वो रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा? फर्दर प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा. देखते हैं अपन. द रिप्रेसर प्रोटीन ब्लॉक द प्रमोटर साइड. हमारे पास इसमें 3 साइड्स है. एक ऑपरेटर रीजन, एक प्रमोटर रीजन और एक है रेगुलेटरी रीजन. ओके. तो जो रिप्रेसर प्रोटीन जब फॉर्म होगा तो क्या करेगा? प्रमोटर रीजन को ब्लॉक कर देगा. लेट्स सी इन दिस डायग्राम. रेगुलेटरी जीन ने क्या प्रोड्यूस किया? अपना रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस किया, क्योंकि यहाँ पर अभी लैक्टोज एब्सेंट है. तो जो डीएनए का जो सीक्वेंस था वहाँ से जो रेगुलेटरी जीन है उन्होंने क्या प्रोड्यूस कर दिया? रिप्रेसर प्रोटीन. जब रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ तो क्या हुआ? हमारी जो प्रमोटर साइट है वो क्या हो गई बेटा? ब्लॉक हो गई. प्रमोटर साइट क्या हो गई? हमारी ब्लॉक हो गई. ठीक है. सेकेंड कंडीशन हमने देखी व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट. जब हमारा लैक्टोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, लैक्टोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, सो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर एलोलैक्टोज इज फॉर्म्ड विद इन द बैक्टीरियल सेल. दिस फीड्स ऑन टू द रिप्रेसर प्रोटीन एट द अनदर एक्टिव साइट. ये क्या होगा? रिप्रेसर प्रोटीन की एक्टिव साइट पर बाइंड हो जाएगा. जैसे ही ये रिप्रेसर प्रोटीन की एक्टिव साइट पर बाइंड होगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन को ही ब्लॉक कर देगा. अब इसने क्या कर दिया? रिप्रेसर प्रोटीन को ब्लॉक कर दिया. जैसे ही हमारा रिप्रेसर प्रोटीन ब्लॉक होगा, हमारा प्रमोटर रीजन फ्री हो जाएगा. हमारा प्रमोटर रीजन क्या हो जाएगा? फ्री. वो प्रमोटर रीजन आगे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑपरेटर रीजन को एक्टिवेट कर देगा. ठीक है. तो व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट अपन देख रहे हैं तो आगे एक्टिवेशन हो गया.
जैसे ही एक्टिवेशन हुआ, क्या हुआ, हमारा जो ऑपरेटर रीजन है वो एक्टिवेट हो गया और ट्रांसक्रिप्शन आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। जब ट्रांसक्रिप्शन कैरी फॉरवर्ड होगा तो हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आई? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें किसकी प्रेजेंस ज़रूरी है, हमें लैक्टोज की प्रेजेंस बहुत ही ज़रूरी है। थर्ड कंडीशन देखिए हमने, व्हेन बोथ ग्लूकोज एंड लैक्टोज आर प्रेजेंट, जब दोनों ही प्रेजेंट होंगे, ग्लूकोज भी और लैक्टोज भी। This explains how the lac operon is transcribed only when lactose is present. But this does not explain why the operon is not transcribed when both glucose and lactose are present. When glucose and lactose are present, RNA polymerase can sit on the promoter side, but it is unstable and keep फॉलिंग ऑफ। क्या होगा, प्रमोटर साइड पे वो बैठ तो जाएगा लेकिन वो क्या होगा, अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज भी है, यहाँ पर लैक्टोज भी है। जब अनस्टेबल कंडीशन होगी तो आगे ट्रांसक्रिप्शन फर्दर कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है। और फोर्थ क्या है, जब लैक्टोज भी नहीं है और हमारे पास ग्लूकोज भी एब्सेंट है, तो जब लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों एब्सेंट होते हैं तो क्या होता है, another protein is needed as activator protein. This stabilize the RNA polymerase. तो हमें क्या चाहिएगा, एक एक्टिवेटर प्रोटीन की ज़रूरत होगी। This activator protein only works when glucose is absent. In this way, E. coli make enzyme to metabolize other sugars in the absence of ग्लूकोज। तो यहाँ पर ये जो होगा, ये अदर शुगर्स को क्या कर देगा, मेटाबोलाइज कर देगा। कौन, हमारा एक्टिव प्रोटीन। तो आगे ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। तो ये हमारी 4 कंडीशन थी और हमने क्या डिस्कस कर लिया, लैक ओपेरॉन। आया सबको समझ में? और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि पॉजिटिव और नेगेटिव लैक ओपेरॉन क्या होता है। तो पॉजिटिव लैक ओपेरॉन हम किसको बोलेंगे, जब हमारे पास लैक्टोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है। उस कंडीशन में लैक्टोज किस में हेल्प करेगा, लैक्टोज हमारे रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर देगा। जब वो रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर देगा तो क्या होगा, हमारा प्रमोटर और ऑपरेटर रीजन फ्री हो जाएंगे और वो हमारे एंजाइम्स का प्रोडक्शन कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास लैक्टोज नहीं है तो जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो ब्लॉक कर देंगे प्रमोटर रीजन को और फर्दर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। ओके, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इट कम्स इन 2 and 3 marks क्वेश्चन। सो वॉच दिस वीडियो अगेन केयरफुली and practice the things. Thank you so much. Have a nice day.